وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ اینی آپریشن. عمران خان صاحب کا موقف اس پہ کلیئر. اب یہ خان صاحب کی بات پہنچانی ہے یا آپ کہتے ہیں تو میں نہیں جاتا, میں بیک آؤٹ کر جاتا ہوں. نہیں سر, میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی آپریشن عوام کی سپورٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا. مور لائکلی انشاءاللہ تعالی ہم شرکت کریں گے, لیکن فارمل فیصلہ پارلیمنٹری کمیٹی نے کرنا انشاءاللہ آج 10. خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہم اس وقت موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اہتمام افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے. یہاں پر صحافیوں کو مدعو کیا گیا, یہاں پر دیگر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو مدعو کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر, محمود خان اچکزئی, عمر ایوب, سلمان اکرم راجہ, اسد کیسر, صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر نے اس افطار ڈنر میں شرکت کی ہے. پرتکلف اہتمام تھا. رمضان المبارک کی بابرکت سعادتیں بھی ہیں. ہم نے تمام تر پولیٹیکل قیادت سے گفتگو کی ہے, اس کی جھلکیاں ہم ویڈیو میں لگا دیں گے, آپ ملاحظہ فرمائیں. ہم نے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب سے اشعار بھی سنے ہیں, وہ بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات, بلوچستان میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں مجموعی طور پر جو بد امنی کی لہر ہے, اس متعلق کل قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے. یہاں سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس اجلاس میں شرکت کرے گی, اور پاکستان تحریک انصاف نے اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے اپنے جو ممبران ہیں وہ بھی چن لیے ہیں, جن میں بیرسٹر گوہر ہیں, عامر ڈوگر ہیں, صاحبزادہ حامد رضا ہیں, اسد کیسر ہیں, زرتاج گل ہیں, اسد کیسر ہیں, یہ شرکت کرنے جا رہے ہیں. اور ہم نے ان سے سوال کیا کہ جو گریونسز ہیں 2 سال کے وہ ان کے سامنے رکھیں گے. وہ سوال بھی اس ویڈیو میں اٹیچ کریں گے جس میں آپ جان سکیں گے. ہم نے کہا کہ جو عسکری قیادت ہے اور پی ٹی آئی ہے, اس کے درمیان ایک فاصلہ ہے, ایک کمیونیکیشن گیپ ہے, بیریئر ہے, وہ کنوے کریں گے کہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ نظر آتی ہے, جو پروپیگنڈا نظر آتا ہے, وہ ہم نہیں ہیں. ہم فوج کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم ریاست کے ساتھ ہیں. یہ مطالبہ, یہ دل, یہ درد, یہ عسکری قیادت کے سامنے رکھیں گے. تو بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس چیز کا اظہار کیا اور یہ تمام چیزیں کل ہم واضح کریں گے. مزید ان کا کیا کہنا تھا, افطار ڈنر میں کس نے کیا کیا گفتگو کی, علامہ صاحب نے کیا اشعار کہے, تمام تر چیزیں اس ویلاگ میں ملاحظہ فرمائیں. بیرسٹر صاحب, کل آپ کو بالمشافہ فیس ٹو فیس عسکری قیادت سے اپنے گریونسز کہنے کا موقع ملے گا 2 سال میں پہلی دفعہ. تو یہ جو گیپ ہے اور جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے ایک نیریٹو بلڈ کر دیا ہے کہ یہ ملک مخالف جماعت بن چکی ہے, اور ابھی جو بلوچستان کے معاملے پہ کہا گیا کہ آپ کا سوشل میڈیا یوز ہوا, یہ چیز آپ کلیریفائی کریں گے کیٹیگوریکلی کہ ہم اس میں ملوث نہیں کر چکے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ پہلی بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف 70% عوام کی نمائندہ جماعت ہے, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس 70% عوام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کھڑے ہونے کی, ہماری سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, پھر ان کو گڈ بائی کہیں گے, کل ان سے بات کریں گے. اگر انہوں نے یہ پٹ اپ کیا کہ نہیں جی آپ ہیں, ہم نے تو یہ کہا ہے کہ دیکھو اسمبلی کے فلور پہ خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے ہر بندے کو کرٹیسائز کیا, انہوں نے ہمارے ہر ونگ کو کرٹیسائز کیا. اس نے اگر کرٹیسائز نہیں کیا تو را اور انڈیا کو کرٹیسائز نہیں کیا. رانا صاحب اٹھتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں تو منسٹری کا رول ہی کوئی نہیں, گورنمنٹ کا رول ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر گورنمنٹ میں منسٹری کا رول نہیں ہے تو کس کا رول ہے؟ اس کا مناؤ کہ کیا اسٹیٹ ود منسٹری, یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو اتنی اسٹرگل ہو رہے ہیں کہ آپ دیکھو ڈے بائی ڈے آپ کے جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کر رہے ہیں آپ کے مخالفین, اور آپ پہ اٹیکس ہو رہے ہیں, وہ گوریلا بھی کر رہے ہیں, ہٹ اینڈ رن بھی کر رہے ہیں. یہ زخم ایجنسیوں نے دیا ہے, اس طرف ان کو استعمال کرنا چاہیے اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے, اور اگر ہم نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے تو یہ کام چلنے والا نہیں ہے. خدا گواہ ہے, میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں, کسی سے. وہ پاگل ہوگا ایک آدمی کہ وہ اپنی افواج کے خلاف کھڑا ہوگا, خدا نخواستہ اپنی ایجنسیوں کے خلاف. لیکن جب ایجنسیاں 2 نمبر کے لوگوں کو لائے گی, اور جنون, میں تو تجویز کرتا ہوں تحریک انصاف والوں سے, میں تو تجویز کرتا ہوں, جس طرح علامہ صاحب نے کہا انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, میں تو تجویز کرتا ہوں کہ ہمیں تمام دنیا کے سفارتکاروں کو یہ کہنا پڑے گا کہ جو بھی معاہدہ اس انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ سے کریں گے, پاکستانی عوام اس کے وہ نہیں ہے. نہ میں نفق قرضے کی ذمہ وار ہے, نہ کسی اور ورلڈ بینک کے قرضے کی ذمہ وار ہے, نہ کسی بھی ملک کے اس معاہدے کے ذمہ وار ہیں جو اس انلیجیٹمیٹ چور حکومت. کچھ تو اخلاقیات ہوتی ہے,
मुल्क का प्रीमियर, मुल्क का वजीर दिफा, मुल्क का वजीर खारजा, मुल्क का यानी इंसान की अपनी ज़मीर भी तो होता है, माँ होती है, बहन होती है, बेटा होता है। आपकी बच्ची को पता है कि आपने इलेक्शन नहीं जीता, आपकी बीवी को पता है कि आपने इलेक्शन नहीं जीता, आपके नौकर को पता है कि आपने इलेक्शन नहीं जीता। कुछ तो खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो। इस तरह मुल्क नहीं चलते। ठीक है, बिस्मिल्लाह, आप मैं वो नहीं करता, बलूचिस्तान में ये हो रहा है, बलूचिस्तान में वो हो रहा है। तमाम बलूचिस्तान की आबादी पश्तून समेत पंजाब के एक जिले के बराबर, गुजरानवाला जिला की आबादी बलूचिस्तान के बराबर, बलूचिस्तान की आबादी लाहौर जिले के बराबर है। उसके वसाइल खरबों में हैं और एक गरीब बलूच, औरतें तो छोड़े, औरतें तो हिसाब में नहीं आती, गरीब मर्द बलूच के पास 3 कपड़े का तस्वर नहीं, जोड़े कपड़े का तस्वर नहीं है। वो किस तरह आपके साथ चले? वो हक मांगेंगे, आप गोलियां मारेंगे। गोलियों से वो फतवात नहीं होती, गोलियों से वो नहीं होती। देखिए, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस और पूरी अपोजिशन की तरफ से हमने डिमांड की थी कि आप हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दें, वहाँ पर हम अपने कंसर्न सामने रखना चाहते हैं। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाला से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम सामने रखना चाहते हैं। अब वो चूँकि असूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि इस मीटिंग को 2 से 3 दिन का टाइम मिलना चाहिए था और इस दौरान हमें मुशावरत का मौका मिलता, लेकिन चूँकि डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ की थी, इस बुनियाद के ऊपर फैसला हुआ कि वहाँ पर शरीक होंगे। जब वहाँ पर शरीक होंगे तो इंशाल्लाह सवाल जवाब फिर वहीं पर ही होंगे। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है, सियासी लीडरशिप, उसकी रसाई खान साहब तक नहीं है, तो मुश्किलात नहीं हो रही आपको फैसलों में? फिर किस तरह मैनेज करते हो? खान साहब का क्या फ़ैसला है, पार्टी का क्या फ़ैसला है? फिर स्पेशली ये कल का जो इजलास है सर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात के सरबराह से मुशावरत तक नहीं की गई, पार्टी ने इजलास में शिरकत का फ़ैसला कर दिया। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, अगर कल इजलास में शिरकत ना करते तो परसों सेशन से पहले आपने पता मेरे से क्या सवाल करना था कि कल वहाँ पर ऑपरेशन का फैसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप इजलास में शरीक ही नहीं हुए, आपने एक मुजरमाना किरदार अदा किया। ठीक है, तो ये जब इन कैमरा ब्रीफिंग की डिमांड की गई थी वो पार्लिमानी पार्टी की तरफ से की गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई थी और फ्लोर ऑफ द हाउस की गई थी। मुझे वैसे ये समझ नहीं आती कि इतनी सस्पेंस जर्नलिज्म से हमें क्या मिलता है। मतलब जब हमने डिमांड ही ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कर दी तो फिर आज ये सवाल हमसे बनता ही नहीं है कि हम किसी से पूछ के आ रहे हैं या नहीं। ये बात मैं आपको बता दूँ, कोई भी फैसला ना इमरान खान साहब की मुशावरत के बगैर होता है। अगर आप ये कहें कि इस फैसले के अंदर कल किसी ऑपरेशन की हमने कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनी ऑपरेशन। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इस पे क्लियर। अब ये खान साहब की बात पहुंचानी है या आप कहते हैं तो मैं नहीं जाता, मैं बैकआउट कर जाता हूँ। नहीं सर, मैं तो ऑलरेडी बड़े बहरान में, पता नहीं 26 नवंबर को सुबह 5-6 बजे अडियाला जेल गेट खुलते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब जाते हैं मिलने के लिए, तब भी हालात ख़राब होते हैं। अब उससे कई गुना ज़्यादा हालात ख़राब है, मुल्क की कौमी अमन सलामती का मसला है, एक तरफ दहशतगर्दी हो रही है मुल्क में बढ़ती हुई, तो खान साहब की राय तो लेना लाजमी थे। इनको इजाज़त क्यों नहीं दी आप लोगों को खान साहब ने मिलने की? नहीं, सवाल ये था सर। सवाल ये है कि अब नहीं दी। मैं तो वहाँ पर नहीं बैठा फैसला साजों के अंदर, नहीं दी, मैं क्या करूँ, क्या कह सकता हूँ? मैं तो इजाज़त की बात ही कर सकता। 26 वाले मामले में रियासत एक पार्टी के मासूम वर्कर्स को मार रही थी, वो मामला वो था। यहाँ पर दहशतगर्द मासूम पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, मजहबी तबकात फ़िक्र को मार रहे हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 26 एंड द लास्ट 1 वीक सिचुएशन। आप उसको समझें और आप तसल्ली रखें। जो खान साहब का मौक़िफ़ है अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के हवाला से, जो खान साहब का मौक़िफ़ है ऑपरेशन के हवाला से, वो कल पूरी शिद्दत के साथ वहाँ पर रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। वो अगर ना रखते तो फिर प्रॉब्लम आ जाना था कि शायद ये खान साहब का मौक़िफ़ ही नहीं रखना चाह रहे थे, इसलिए खिसक गए हैं। ऐसी जगहों पर इतने ताकतवर लोगों के आगे बैठ के बात करना, आप अपना बहुत कुछ स्टेक लगा के करते हैं। सर, आप ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन आपके मुताबिक हल किया है अगर ऑपरेशन ना हो? सर मेरे पास, अच्छा मैं एक और बात अर्ज़ कर दूँ, मैं एक मीटिंग से हट के पिछली 3 पॉलिटिकल मीटिंग्स के अंदर शरीक रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये बात कहाँ से आई है कि पॉलिटिकल कमेटी में PTI के सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से बात हो रही है या वो जनाब खान साहब से इजाज़त ली जा रही है। मैं आपको ऑन ओथ बता सकता हूँ कि पिछली 3 मीटिंग्स के अंदर कम से कम ऐसी कोई बात नहीं है। अब किसी और ने किया तो उसके लिए जवाब दिया, मुझे तो कोई इश्यूज़ नहीं है। मेरे नज़दीक तो र्यूमर्स हैं। मुझे देखिए, हमारे आज तक इतनी बड़ी कामयाबी की बुनियादी वजह अल्लाह के फजल के बाद और खान साहब की इस्तकामत के बाद वो सोशल मीडिया। मैं कैसे उसकी मुखालफत करूँ? सर, माजी में आप ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन आपके पास हल किया अगर ऑपरेशन ना हो? क्या तजवीज़? आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे, तो मतलब ऑपरेशन नहीं होगा तो हल क्या है? हाँ, हल दूंगा, बगैर बात करके तो नहीं जाऊँगा ना। मेरे से ज़्यादा हल्की से पता होगा जिसने अपना बाप भी तालिबान से शहीद करवाया है, जिसने अपनी जमात के 160 लोग तालिबान से शहीद करवाए हैं।
जो गुज़श्ता 6 माह से पीट रहा था कि बलूचिस्तान के अंदर इस एरियाज़ में एरिया स्पेसिफाई करके बता रहा था कि ये हालात है। अब मैं कॉन्स्टेंट ट्रैवलर हूँ, हाल इंशाल्लाह वहीं पर दूंगा जहाँ पर देना। आमिर रज़ा साहब, लास्टली ये कमेंट कीजिएगा, इस बात को भी वहाँ पे बयान किया जाएगा कि मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात के रहनुमा साबका वज़ीर आज़म, उनका इनपुट भी लेना ज़रूरी था और कहा जा रहा है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं बुलाएगी कि खान साहब की शिरकत यकीनी ना बनाई जा सके। बिल्कुल, ये हमारी तरफ से कैटेगोरिकली ये बात क्लियर थी कि अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुकूमत को बुलाती है या ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करती है तो जब तक खान साहब नहीं आएंगे हम उसमें शमूलियत नहीं करेंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और पार्लियामेंट की इन कैमरा ब्रीफिंग टोटली 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर भी कल जो लोग जाएंगे उनका भी फैसला मेरा ख्याल थोड़ी देर में आपको बता दिया जाएगा। ये डिसाइड है कि जो खान साहब का दहशतगर्दी के हवाला से, अफगान पॉलिसी के हवाला से मौक़िफ़ है, वही मौक़िफ़ एज इट इज़ रखा जाएगा वहाँ। बहुत शुक्रिया सर। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे जो है उसमें पार्टी बनाने, पार्टी गिराने में, हमदर्दियाँ बनाने, हमदर्दियाँ गिराने में लगते हैं। पीटीआई की वर्कर की पीछे लगी हुई है। तो ये अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो मेरा ख्याल है बहुत से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसका। और जो मैं आपको बता दूं कि कोई ऑपरेशन अवाम की सपोर्ट के बगैर कामयाब नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, आज इदारों और अवाम के दरमियान काफ़ी फासले हैं। पहले वो फासले कम करने में किरदार अदा करे ताकि हम कामयाब हो। अगर इसी तरह के हालात होंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ऑपरेशन कामयाब हो। इमरान खान साहब से मुलाकात आपकी नहीं हुई है, मुसलसल नहीं हो रही है, तो फिर ये फैसला किसने किया है कल के इजलास में? ये अभी पार्लिमानी कमेटी में कंसेंसस से फैसला हुआ था। मेरा वहाँ भी ये था कि हमें इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए जब तक खान साहब की इनपुट ना हो, खान साहब को इत्तेमाद में नहीं लिया जाए और खान साहब से रहनुमाई नहीं ली जाए तो उस वक्त तक हमें इसमें नहीं। लेकिन अक्सरियत की राय ये थी कि हमें वहाँ जाके हमें सुनना चाहिए और अपनी बात जो है वहाँ पर कहना चाहिए। तो इसलिए अक्सरियत से ये फैसला हुआ कि हम कल जुनैद अकबर साहब, ये मामला कौमी सलामती कमेटी में भी उठाएंगे कि मुल्क के सबसे मकबूल पार्टी के लीडर, उनको कम अज़ कम यहाँ पे शामिल होना चाहिए था, वज़ीर आज़म रहे हैं, इनपुट होना चाहिए था, कंसेंसस डेवलप होना चाहिए था। ये तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि खान साहब सिर्फ पॉपुलर नहीं है, वो 70% अवाम की नुमाइंदगी करता है, जिसकी सह है, जिसको लोग सुनते हैं, जिसकी बात समझते हैं, जिसको समझ है पाटा के टीवी के हालात की इनपुट इंतहाई ज़रूरी है। तो अगर वो इदारे और हुकूमत चाहती है कि वाकई ये जो है इसका बामानी हो तो उसके लिए खान साहब को लेके आना चाहिए और खान साहब से रहनुमाई। ये मौलाना रूम की मसनवी की पहली मसनवी के तीसरा चौथा शेर है जिसमें वो एक हकीकत को बयान करते हैं कि जब तक कोई आदमी बराह रास्त मुश्किल से ना गुजरा होना तो दूसरे को उस दर्द और दुख रंज का एहसास नहीं हो सकता जो उसने देखा है। इसका ज़ाहिरी माना ये है, सीने खाम शर है सीने, यानी सीना चाहिए। मी खाम मुझे सीना चाहिए। कैसा सीना? शर है अज़ फ़राक, शर यानी टुकड़े टुकड़े, फ़राक यानी जुदाई। मुझे ऐसा सीना चाहिए जिसके दिल को, जिसे जुदाई और फ़राक के दर्द ने टुकड़े टुकड़े किया हो। क्यों ऐसा सीना चाहिए? ताबिग गोयम शर है दर्द इश्तियाक, ताकि मैं अपने दर्द शौक़ की तफसीर और शरह बयान कर सकूं, क्योंकि वो समझ सकेगा कि जब ये दर्द और दुख रंज के जो है ना लम्हात कैसे गुजरते हैं। एक आदमी पानी में आग में जल रहा है ना, बार बार खड़ा देख रहा है, कहता तकलीफ़ में है, लेकिन उसकी तकलीफ़ कैसी है नहीं पता जब तक खुद ही आग में नहीं जलेगा। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ये हुक्मरान जो हमारे हैं उन्होंने महंगाई देखी ही नहीं है। वो बांसुरी की मिसाल क्या? अच्छा वो भी देता हूँ। महंगाई देखी नहीं तो क्या पता महंगाई में रहने वाले लोगों का दुख दर्द क्या होता है, रंज क्या होता है। नाअमनी में जो लोग रह रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, अचानक लाशें घरों में जा रही हैं, मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। जिन लोगों ने तबाही बर्बादी लम्स ना की हो ना, उन्हें क्या बताया तबाही बर्बादी क्या होती है, नाअमनी क्या होती है। लिहाजा पहले जो इसका था ना, वो मसले का शेर था कि बिशनो अज नए चुन हिकायत मी कुनद, नए की इंसान को मौलाना रूम ने बांसुरी से तशबीह दी है। कहते बिशनो अज नए, इस बांसुरी को सुनो। क्यों? चुन हिकायत भी कुनद, ये बातें कर रही है, ये गुफ्तगू कर रही है, सुनो उसको। अज जुदाई हा शिकायत मी कुनद, ये अपनी जुदाइयों के दुख रंज बयान कर रही है, शिकायत कर रही है। दुरुस्त है। ये पूरा एक मसले के अंदर मौलाना ने पहली मैंने इंसान को इससे तशबीह दी है, तो फिर तर्जुमा करके थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा। चुन मेरा अज निस्तान बेबुरी दान अज चश अज नफीरम मर्द जन नालीदान, चूँकि ये गए हैं निस्तान में, जंगल में, वहाँ से मुझे इन्होंने काट के लेयर बासी बना दी ना, चूँकि इन्होंने मुझे उससे अपनी असल से जुदा किया है ना, इसलिए मेरी फरियाद से ना हर कोई रोया है, कायनात रोई है, सारे रोए। दुरुस्त है।
लिहाजा ये है कि इंसान उस आलम मलकूत से यहाँ आया है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे डिज्नी लैंड है, इन्नमल हयात दुनिया लहवन व लाइब, कुरान में भी है। डिज्नी लैंड में बच्चा चला जाए तो क्या उसका हाल होता है? गुम हो जाता है खेलों खेल, वालदैन साथ हैं, गुम हो जाता है, वालदैन को गुम कर बैठता है, भूल जाता है। जब उसका दिल भरता है ना तो क्या करता है? रोना शुरू करता है, देखता है मैं कोई नहीं है, तो रोता क्यों है? जहाँ से आया वहाँ जाना चाहता है। इंसान ऐसा है, इस डिज्नी लैंड में आ गया, सब कुछ भूल गया है। जब इसको याद आता है तो गिरिया करता है। गिरिया किसका करता है? अपनी असल से जो वापस जाना है मैंने वहाँ, तो क्या कहते हैं? सीने खाम शरे शरे अज़फ़ार काबे गोया, जो जुदाई का दर्द महसूस कर रहा है इंसान, गफलतों से निकल आया है और वापस जाना चाहता है अपने असली घर की तरफ। ताबे गोयम शरे दर्द इश्तियाक, हम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, उधर से हैं, उधर जाना है। जब तक वहाँ को बोले रहेंगे हम यहाँ खुश रहेंगे। जब असल याद आएगी, जुदाई याद आएगी, फिर रोएंगे। फिर नमाज भी पढ़ेंगे तो रोते हुए पढ़ेंगे, दुआ भी करेंगे तो रोते हुए करेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे तो आँखों से आंसू जारी होंगे, क्योंकि हम अपने उस खुदा से, अपने उस हस्ती से के बारे से जुदा हुए हैं, उस आलम मलकूत से, कि जो हमारा करीम रब है, मोहब्बत करने वाला है, पालने वाला है, सब कुछ। हमें उसके पास वापस जाना है। इधर हम गुम हो गए थे आगे। बहुत शुक्रिया।